اللہ نے جن باتوں کو توڑا کہ میں رنگ اور نسل کے بھید ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک دفعہ صرف مذاق میں، وہ بھی روایتوں میں لکھا ہے کہ صرف مذاق میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے تھے، انہوں نے مذاق میں 100% مذاق میں انہوں نے یہ کہا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ایک کالی ماں کے بیٹے، اب بلال کے دل پر لگ گئی، کہا مذاق میں لیکن ان کے دل پہ لگ گئی۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان نے مجھے کالی ماں کا بیٹا کہا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، ڈانٹا، فرمایا سلمان ابھی زمانے جاہلیت کی باتیں کرتی ہو، میں آ چکا ہوں، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عربی پر، کسی غریب کو کسی امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اب سیدنا سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر نکلے، اس دور میں سڑکیں کچی ہوتی، بلال آئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹ گئے چپ، اور اپنا ایک کام ریت کے اوپر لگایا اور بلال کو آواز دے کے کیا کہتے ہیں کہ بلال میرے بھائی، بلال میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، وہی مذاق میں تھی، پھر کہہ رہا ہوں کہ بلال میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ آئیے میرے پاس اور میری رخسار پہ یعنی میرے چہرے پر اپنے پیر رکھ کے دیکھیے تاکہ اس غلطی کی تلافی ہو جائے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آگے بڑھے اور دونوں کندھوں سے پکڑ کے سیدنا سلمان فارسی کو اٹھایا، اپنی چھاتی سے لگایا، فرمایا سلمان میرے بھائی، جو بندہ اپنی غلطی مان لے اس کو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کی غلطی کی نہ۔ آپ دین کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اللہ نے یہ نماز اس لیے نہیں دی تھی آپ کو کہ صرف 5 وقت پڑھوانے کی مسجد میں اس لیے بھلے بڑھیا بنائیں اور آپ آؤ اور اگر امام لے گئے تو اس کو ڈانٹو، مؤذن لے گئے تو اس کو ڈانٹو، اس کے بعد چلے گا آپ نے گھر کے پاس۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس ایسے ایمانداری سے یاد کر کے اور کھڑا کر کے بتانا کہ جنہوں نے مسجد میں اپنی روزانہ جھاڑو مارا ہے، کوئی لوگ ایسے آپ کے اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں کیا جو اپنی مسجد کی بیت الخلاء کو صاف کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مسجد کی چھتیں کو بچھاتے ہیں، وضو اٹھاتے ہیں؟ آپ پوچھ رہے ہیں دوسری قوموں کو، آپ اپنا راستہ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، آپ بذات خود اپنی صحت کے ذمہ دار ہیں۔ کوئی بندہ صبح شام 200 سگریٹ پھونکتا ہو، تمباکو کے پان کھاتا ہو اور 5-10 سال بعد کہے کہ مجھے تو کینسر پڑوسی کی وجہ سے ہو گیا، ارے بدبخت سارا دن نشہ تو زیادہ پڑوسی کو نہیں کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ کبھی کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ دیکھو کہ بھی ہماری سیاست کیا چاہ رہی، ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کو تانے دینا کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ سنو نماز کیوں قائم کی گئی؟ نماز اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے، پوچھ لینا اس کے حساب سے۔ وجہ تو اصل مغرب عشاء کو ریل گاڑی میں لوگ آج کل پڑھ لیتے ہیں، کار میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، سفر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن مسجد کیوں بنائی؟ مسجد کیوں بنائی؟ کیوں مسجد بنائی؟ پھر کہو گے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنا دی ہے؟ فرمایا تاکہ تم لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کس کے ساتھ نماز پڑھنی تھی؟ اور پھر پوچھتے ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے پڑھیں؟ امام بخاری جواب دیں گے، امام نسائی، امام ابو داؤد جنہوں نے رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے اس جگہ، تو نبی علیہ السلام کا ہم جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو۔ کس سے کندھے سے کندھا؟ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ تو محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل آپس میں، بولو دل آپس میں مل جائیں گے۔ تو کیا ہمارے پاس وہ مسجد ہے کہ جہاں فجر میں عبد الرحمان نہ جائے، ظہر میں نہ جائے، عصر میں نہ جائے، تو عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں اس کے نمازی دوستوں کو یہ فکر ہو جائے
کہ عبدالرحمان آج نہیں آیا, اگر وہ دکھ درد میں ہے تو دکھ درد بانٹیں گے, بیمار ہوگا تو بیمارداری کریں گے. آپ کو تو ابھی یہی پتہ نہیں لگا کہ نماز نماز تو گھر کا بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک خوبصورت سماجک ویوستھا کو بنانے کے لیے کہ آئیے نمازی ہیں, ان کے پاس کوئی دوسرا ہوتا ہوا جائے گا یا اس کے ہاتھ پوچھیں گے, یہ نمازی ہیں, ان کے پاس کوئی بھوکا جائے گا اس کو کھانا کھلائیں گے, یہ نمازی ہیں, ان کے پاس کوئی ان پڑھ جائے گا تو اس کی فیس جمع کر کے اس کو تعلیم دلوائیں گے. یہ نمازی ہیں, یہ خود بعد میں کھاتے ہیں, دوسروں کو پہلے کھلاتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اللہ کے نبی نے مسجد بنائی, اس میں اصحاب صفہ کا چبوترا بنایا. آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ, ارے جاتے عمرہ کرنے بھی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو بھی لے گئے, کہیے آمین آمین. نبی علیہ السلام کے روضے کے بالکل ساتھ ایک چبوترا ابھی بھی بنا ہوا ہے, اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. کس کا؟ اصحاب صفہ کون؟ رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ یہ چبوترا کس لیے ہے؟ آج کے دور کے حساب سے آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں. حدیث کا حکم ہوا, یہ دنیا کی پہلی NGO ہے, یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا یتیموں کا گھر ہے, یہ دنیا کا پہلا اسکول ہے, یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے, یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے, یہ دنیا کا پہلا لنگر کی جگہ ہے. یا رسول اللہ اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا جن کو کوئی نہیں پوچھتا ان کو ہم اپنے پاس رکھیں گے, ان کی خبر بھی کیا کریں گے. تم بھی بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے پاس سردنے کے کسی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترے کا حکم بھی باقی ہے کہ نہیں؟ چبوترا تو چھوڑو, حکم باقی ہے کیا اس کا نہیں؟ کیا آپ کے پاس ایسی مسجد ہے جس کے متولی کو, امام کو, صدر کو یہ پتا ہو کہ اس محلے میں کتنے لوگ ہیں, ان میں کتنے غریب ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, دلت ہیں, جینی ہو, کوئی کیا پتا ہے آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے بلال کو پوچھتے ہیں کہ سامنے والے پڑوسی کھا چکے ہیں؟ جی رسول اللہ کھا چکے ہیں. دائیں طرف والوں نے کھایا, جی رسول اللہ کھایا. بائیں طرف والوں نے, جی رسول اللہ. پیچھے جو محلہ وہ کھا چکے. اس وقت وہ سارے کے سارے لوگ مدینے میں مسلمان نہیں تھے, اس دور میں مدینے میں یہودی بھی رہ رہے تھے, مختلف رنگ اور نسل کے لوگ مدینے میں رہتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہم اس وقت کھانا کھائیں جب سارے مدینے کے کھانا کھا چکے ہوں. کیا آپ کی مسجد میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ اس کی ابھی کیا گجرات میں کہہ کے آیا ہوں, تو پتہ نہیں کچھ لوگوں کو بات اچھی لگی یا نہیں. کہ ٹھیک ہے زکات بانٹ رہے ہو, پوری دنیا میں بانٹ رہے ہو, کیا تمہارے ایک مسجد میں ہمیں نماز پڑھی کریں گے 7 کروڑ روپے لگا کے بنائیے, اس کے آس پاس غریبوں کے گھر ہیں, چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تو ان 7 کروڑ کا کیا کرنا ہے اگر ان غریبوں کے منہ میں اپنی کا حکم نہیں ڈال سکتے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں آج کے اسلام ہمارے پاس آیا نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں دو کہا, سنو اب یہ جو الگ الگ جواز پیش کر رہے ہیں, ان کی باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں لیکن قرآن میں ایسا نہیں. قرآن نے کہا کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی, ان الصلاۃ, نماز تم پر فرض کر دی گئی اس لیے تاکہ تم آج کے بعد گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں. پتہ لگا نماز کو پڑھوا رہے, پتہ لگا نماز کو پڑھوا رہے کہ تم نماز پڑھو تو ٹھگی نہ ماریو, نماز پڑھو تو کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ نہ ڈالنا, نماز پڑھو تو ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں مت بولنا, نماز پڑھو تو بیوی پہ تھپڑ نہ مارنا, نماز پڑھو تو بچوں پہ ظلم نہ کرنا, نماز پڑھو تو پڑوسیوں سے گنڈا گردی نہ کرنا, نماز پڑھو تو حرام نہ کمانا. اب تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کہتی ہے اللہ سے ملنا ہے. اللہ ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا جو سجدہ بھی کرے ٹھگیاں بھی مارے, اللہ ان سے نہیں ملنا چاہتے جو سجدہ بھی کرے ماں باپ کو گالی بھی دے, اللہ ان سے نہیں ملنا چاہتے جو سجدہ بھی کرے اور بیوی کے ساتھ لڑائی بھی کرے, اللہ ان سے ملنا چاہتے جو نماز میں یہ وعدہ کر کے جائے کہ تیرے سے وعدہ ہے کہ آج کے بعد میں بے ایمانی نہیں کروں گا, میں ایمانداری کی زندگی گزاروں گا, اس لیے نماز پڑھوں. قرآن نے پھر کہا کہ نماز متقیوں کے لیے ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ ارے متقی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دیسی زبان میں کس کو کہا متقی؟ ہاں جی,
अरे तकवे वाले को नहीं कहते, अच्छे बंदे को मुत्तकी कहते हैं। अच्छा बंदा कौन होता है पता है? जिसकी दाढ़ी पगड़ी ना जाएगी वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में बैठे, उनका पीए उनके साथ बैठा हुआ है। तो पीओ को तो आदत होती है चमचागिरी मारने की। बंदे सारे नहीं खराब होते, बाल बाल साथ वाले जितने बड़े लोग होते हैं सारे नहीं खराब होते, चमचे खराब होते, उल्टे फैसले करवाते। तो पीए ने कहा उमर बिन खत्ताब, ये जो बंदा सामने नमाज पढ़ रहा ना, नमाज पढ़ने आया, हाँ ये बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा प्यारा बंदा है, बड़ा दीनदार बंदा है, बड़ा परहेजगार बंदा है, और ये पैसे भी बहुत बांटता है और खैरात भी करता है, लंगर भी लगाता है। तो कहा कि ये बड़ा अच्छा बंदा है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपको पता ही है जलाली में, अब उन्होंने अपना हाथ उठाया, उसकी चुटी में एक मारी, फरमाया दौड़ के जा, कहाँ जाऊँ मेरे मोमिनीन? फरमाया इसकी माँ से पूछ गया कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। अगर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा फरमाबरदार है तो ये अच्छा नमाजी है, अगर नमाज ये कहती है कि ये बदतमीज है तो फिर ये नमाजी नहीं है, बदतमीज है। आपने क्या समझा नमाज कैसे होती भाई? आपने क्या कहा? वजू ठीक हो, किबले की तरफ हो और दाढ़ी पूरी हो, मुझे बारी, आपने इनको ये प्रोटोकॉल है, ये नमाज का प्रोटोकॉल है, समय का प्रोटोकॉल, ये नमाज की जरूरतें हैं, मकसद नहीं है नमाज का। लेकिन बिना जरूरत के तो मकसद तक नहीं पहुंच सकते। हमने सफर करना है तो गाड़ी हमारी जरूरत है, तो मैं कहूँ बिना गाड़ी के नहीं जा सकता हूँ, तो ये तो जरूरत है, ये तो पूरी होनी चाहिए। तो मकसद कुरान में फिर कहा नहीं कल्लज़ी युगस्सिबु बिद्दीन फज़ालिकल्लज़ी यदउल-यतीम। तो मुफ्ती सारे के सारे, लेकिन कभी शायद का तर्जुमा नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाते हैं इनकी नमाज खराब हो गई है, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं इनकी नमाज बर्बाद हो गई। बुल्ले शाह ने पंजाबी में तर्जुमा इसका किया कि नमाज पढ़ी से नियाज न दिखती, तेरिया किस कब पढ़िया नमाजा। फरमाते नमाज जो पढ़ता है नियाज नहीं देता। अब तुम कहोगे कि हम तो सोचते हैं आप तो सिर्फ बरेलवी दें, यहाँ तो अल्लाह ताला देने की बात कर रही है। आज क्या कह रहे हैं अल्लाह? फरमाते नमाज तो पढ़ता है, यतीम के मुंह में लुकमा नहीं डालता है, तो इसकी नमाज बर्बाद हो गई, खत्म हो गई इसकी नमाज, कोई नमाज नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज इसलिए आगे पीछे कि उनको अच्छे लोगों की दीन में जरूरत थी। वो अल्लाह से ये चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका दीजिए मेरे दीन में अच्छे लोग आए। अब पता है नमाज कैसे कबूल होती है? सीधी सादी बात, नमाज कैसे कबूल होती है पता है? कबूल होने की अलामत क्या है? अलामत की बात करता हूँ, कबूल होने की क्या अलामत है पता है आपको भाई? अरे बताओ पता है कि नहीं? अरे बोलो तो सही। मुफ्ती साहब ने इसी ऐलान करवाया था चंदे का भी ढंग से पैसे दे दो, अच्छा मदरसा बना दे ताकि तुम्हारे बच्चों को समझा दें। तो स्टेट वाले भी चुप है, एक दूसरे को कह रहे थे जो जहाँ लाखों पति रह रहे हैं वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि हम दीन ब्रांड का नहीं चाहते। नमाज की अलामत क्या है? नमाज किस तरह पता लगता है दिल को कि हो गई? अभी आप मस्जिद में जाएंगे, असर की नमाज पढ़ने गई, इंशाल्लाह जाएंगे। अब नमाज पढ़ के जब आप मस्जिद से बाहर निकले, सामने सड़क पर किसी की बेटी जा रही है। अब यहाँ लफ्ज़ बेटी याद रखना, क्या याद रखना है? हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक लड़की को गिरफ्तार करके लाए साहब, वो लड़ पड़ी थी, जनरल थी किसी फौज की, तो उसके सर में दुपट्टा नहीं था, वो हातिम ताई की बेटी थी, बहुत बड़ा बादशाह था। तो नबी सल्लल्लाहु ने बड़ी दूर से महसूस कर लिया कि जो बेटी आ रही है उसके सर पर दुपट्टा नहीं है, तो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के एक साहबी को दी, और मैं दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर रख के आओ, उसके दुपट्टा नहीं है। तो साहबी ने अदब से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
यासीन वाली चादर, ये मुदस्सिर वाली चादर। कौन सी चादर? अरे कौन सी चादर पता है? अभी भी नहीं पता, सुन लो किसकी चादर है वो चादर उनकी है कि शेख सादी कहते हैं मैंने बहुत शेर लिखे नाच के, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। फिर एक दिन एक मिसरा लिखा कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाते कि मेरे दिल ने कहा सादी, अल्लाह के बाद कायनात में अगर हमारे लिए सबसे मुआफ़िक़ कोई है तो मोहम्मद। अब मेराज पे जाना कब लगे? कहाँ जाना था जी? मेराज पे जाना था। बीच में चादर की अहमियत समझा दूँ पहले आप, क्योंकि आप लोगों ने अहमियत का बड़ा रखा है ना। हर बंदा चाहता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़। सुनो चादर किसकी है? नबी अलैहिस्सलाम मेराज पे जाएंगे अल्लाह से मिलने। उम्मे हानी के घर के कमरे में आराम कर रहे हैं, जिब्रील आ गए, सवारी आ गई बैतुल्लाह में। अल्लाह के नबी को उसको बिठा कर लेके जाना है। जिब्रील जब कमरे में पहुंचे तो देखा नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। उन्होंने अल्लाह को कहा कि अल्लाह तेरा महबूब सो रहा है, आप हुक्म दे मैं आवाज दे दूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरे महबूब को आवाज दोगे अचानक पिलट जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे महबूब को जरा बराबर भी परेशानी हो। फिर उन्होंने कहा अल्लाह आप अगर इजाजत दें तो मैं हाथ लगा दूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को। फरमाया नहीं जिब्रील, ठीक है तू फरिश्तों का सरदार है, ठीक है 24 घंटे तू अर्श पर रहता है, मान ली ये बात कि तुझे बड़ा मुअज़्ज़िज़ बनाया है, लेकिन इतना मुअज़्ज़िज़ भी नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म पाक को हाथ लगा ले। जिब्रील को पूछते अल्लाह से, अल्लाह करना क्या है? आवाज देनी, हाथ लगाना नहीं। प्यारे पैगंबर को उठाना कैसे? अल्लाह फरमाते जिब्रील घूम के पैरों की तरफ हो जाओ। जी अल्लाह जी पैरों की तरफ हो गया। अब क्या हुक्म है? जिब्रील अपने घुटने जमीन पर लगाओ, घुटने जमीन पर लगाए। अब क्या हुक्म है? फरमाया अपने ठंडे ठंडे होंठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों के साथ लगाओ ताकि रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। बताना था कायनात को कि कायनात में अफजल कोई साथ है तो आजकल तो कोई छोटे छोटे मौलवी ना नौजुबिल्लाह अल्लाह तौबा करे, उसमें बेलवी जो बंदे दोनों शामिल है, बहस करने लगते हैं कि रसूलुल्लाह के पास इल्म गैब था या नहीं था। तो जिनको अपना इस्तिंजा नहीं करना आता वो रसूलुल्लाह पे बहस करते। वो ज़ात वो है कि उनको बजाय तनाज़ा नहीं बनाया जा सकता। आपकी हुजूर दीन को समझने की, उस पर अमल करने की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास क्या इल्म है और किस हद तक है ये अल्लाह को इल्म है। आपको इसका मुआवजा करने का इख्तियार शरीयत ने इख्तियार नहीं दिया। इमाम अबू हनीफा से लेकर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1200 साल तक किसी मुहद्दिस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआवजे पर बहस की थी। ये बदबख्ती भी इसी दौर के कुछ लोगों के हिस्से में आई कि लोग आपस में बहस करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या है क्या नहीं। हमारी भी औकात नहीं है, अपनी औकात से बाहर हमने खुदा नहीं। तो बात चल रही थी चादर की, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतार के दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर रखो। उस सहाबी ने अदब से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ताहा यासीन वाली चादर आप रहने दीजिए। क्यों रहने दें? या रसूलुल्लाह वो तो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर दे देता हूँ। प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया कान खोल के सुन ले, आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है। हमारी शरीयत में बेटी बेटी होती है, चाहे फिर वो हमारी हो या फिर किसी और के हो जाए। तो मैं आज ये कर रहा था कि आप मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, नमाज की कबूलियत की अलामत क्या होती है वो बता रहा हूँ आपको। मस्जिद से नमाज पढ़ के आप निकले, सामने कोई बेटी जा रही है, बहन जा रही है। अब अगर आप उसकी तरफ देख के जिना का इरादा रखते हैं, लज्जत हासिल करने का इरादा रखते हैं, उस पर निगाह टिका के रखते हैं, अंदर आप बेईमानी करके आए हैं,
ठगी मार के आए हैं और आपकी नजरें अगर झुक गई हैं इस्तग़फ़ार के साथ, तो फिर आप नमाज पढ़ के आए हैं, आप अल्लाह को मान के आए हैं और अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं। बंदियों से क्या पूछना नमाज कैसे होगी कैसे नहीं? वो तो ये बताएंगे कि क्या क्या कलमात नमाज में पढ़ने। इस संभव दिल से पूछो जो नमाज में पढ़ता है, जब हम सजदा करते हैं मस्जिद में जाते हैं, तो अगर हमारी ऊपर वाली जेब में, हम लोग प्रोग्रामों में जाते हैं ना, तो एक दिन मैं कहीं नमाज की नियत मानी, मेरे साथ एक बच्चा खड़ा हुआ। हम जब सजदे में गए तो उसकी जेब में से 25-30 बादाम निकल के उठा के जेब में डाल दिया। अगर बादाम की जगह बीड़ी का पैकेट होता, सिगरेट होती, तो क्या गिरता भाई? अरे क्या गिरता सामने? वही तंबाकू होता। तो जो लोग सजदा करते हैं भाइयों की दुश्मनी लेके, जो सजदा करते हैं गिबतें लेके, जो सजदा करते हैं बेईमानियां दिल में लेके, जो सजदा करते हैं ठगी के इरादे लेके, तो जब वो सजदा करते हैं उनकी सारी ठगी सारी बेईमानी तो सामने पड़ी होती है। वो सजदा कैसे कबूल हो जिसके अंदर इतना गंद और कचरा साथ में आया हुआ है? वो कैसे कबूल हो? ज़ाहिरी वजू तो किया जा सकता है, बातिनी वजू जब तक नहीं किया जाएगा उस वक्त तक सजदा कैसे कबूल हो जाएगा? मैंने अपने वालिद मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी शेर इस्लाम रहमतुल्लाह को पूछा कि बाजी अगर नमाज पढ़ने से भी गुनाह न छूटे तो क्या करें, क्या करना चाहिए? तो मुझे कहने के बेटा उस वक्त तक अच्छी तरह नमाज पढ़ते रहो। आप दीन को समझ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ जातियां नहीं, दीन को समझे। इस्लाम में 10 सहाबा हैं, मौलवी ने शायद आपको नाम बताया होगा, अबू बकर सिद्दीक है, उमर बिन खत्ताब है, उस्मान बिन नुरैन है, मौला अली करमुल्लाह वजू है, अबू हुरैरा है, खालिद बिन वलीद है, अबू बकर बिन जर्राह है। 10 ऐसे लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह ने कहा कि अशरा मुबश्शिरा है। अशरा मुबश्शिरा समझते हो? यानी इनको दुनिया में बता दिया कि तुम जन्नती हो। अरे वो तो इसलिए बताया दुनिया में जन्नती हो, जन्नत में तो 1,24,000 सारे के सारे सहाबा जाएंगे, तो 1,24,000 को बताना था कि जब रसूलुल्लाह दुनिया से पर्दा करेंगे तो ये वो 10 लोग हैं जिनका तुम कहना मानोगे कि तुम सब में ज्यादा अफसर बताओ। और उन 10 को भी नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत के दिन जब मैं उठूंगा तो अबू बकर और उमर मेरे साथ होंगे। उन 10 को भी ये बताना था कि तुम्हारे ऊपर भी जिनको कमांडर लगा दिया गया तो ये लोग मेरे से सबसे ज्यादा। उन दोनों की बात चलाई तो नबी अलैहिस्सलाम जब बीमार हुए, बीमारी की हालत में मस्जिद नबी में पहुंचे, शदीद बुखार था, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े नहीं हो सकते थे, अबू बकर का हाथ आगे पकड़ा, उनको अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में अपने सामने मुसल्ले पर खड़ा किया ताकि उम्मत को ये बता दें कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर्दा करेंगे तो तुम्हारी क़यादत अबू बकर के हाथ में होगी। ये सबसे बड़ा मुसलमान है, इसके हाथ में समझ नहीं आ रही बात अभी भी आपको? कारोबार में, दीन में, सियासत में सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करो। यहाँ बीमारी है मौलवियों में, यहाँ के बड़े मकानों में, सरपरस्तों में, जब तक हम कुर्सी में हम कहते हैं अमीर रहेंगे। अरे भाई जिस दिन तुम्हारी हवा निकलेगी कौन बैठेगा? किनको डरवाना है? सेकंड लाइन की लीडरशिप कहाँ है? सेकंड लाइन के इमाम कहाँ है? सेकंड लाइन में जिन्होंने सियासत करनी वो कहाँ है? कारोबार में सेकंड लाइन में जिन्होंने क़यादत संभालनी कहाँ है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपको अकेली बात समझा के जा रहे हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं सुन रहे। आप तो कह रहे हैं कि मस्जिद का मतलब सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ना है, जुमे की नमाज पढ़ना है। नहीं, मुसलमानों की दुनिया नहीं होती, मुसलमानों का दीन ही उनकी दुनिया होती है। और दीन को दुनिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद इसलिए बनाई कि आप में नाता पैदा हो,
हमारा झगड़ा क्या है भाई? हमारा आपस में झगड़ा क्या है? कोई खाने का झगड़ा है? अरे भाई कोई खाने पीने का झगड़ा है? हालत ये सब तो खराब है कौन की, सियासतदानों को छोड़ दो, मौलवियों का नाम भी इश्तिहार में ऊपर नीचे हो जाएगा तो 2-4 मौलवी पकड़ डाल, लीडर भी बनना डाल दें, प्रधान को डाल के हमारा तो नाम है ना इश्तिहार में। हमारे स्टेज पे देख लो कितने लोग चढ़े हुए ऊपर। माता इताअत का, मोहम्मद ने चुना नहीं कि मस्जिद बनाई, इताअत का माता आ जाए उम्मत में। वो इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है ज्यादा से ज्यादा हाफिज होगा, लेकिन मुअज्जिन उसके पीछे नियत बांधते हैं, सदर उसके पीछे नियत बांधते हैं, अफसरान उसके पीछे नियत। वो नियत बांधने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि नमाज की इताअत कर रहे हैं, इनका मतलब कि हमारे में ये मामला है कि हम बड़े होने के बावजूद जब दीन की क़यादत किसी के हाथ में पकड़ाई जाएगी तो हम उसको तस्लीम कर देंगे, उसके आगे जाके तालीम को देखिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास कुछ सहाबा गए, वही रसूलुल्लाह, उस दौर में जब जंग होती थी पत्थर फेंकने की कुछ चीजें मिलती थी, मंजिली किसको कहते हैं, या रसूलुल्लाह वो हम लोगों को खरीदनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हम नहीं खरीदेंगे। क्या कह दिया कि हम इधर तवज्जो दे लीजिए मेरी तरफ, फरमाया हमने नहीं खरीदनी। तो क्या करनी है? फरमाया 2 साहबा को भेजो ना, जिस मुल्क में बंदी है वहाँ रहेंगे, शागिर्दी करेंगे, बनाना सीखेंगे, ताकि इल्म हमारे पास आ जाए, फिर हम अपने लोगों को सिखाएंगे। मतलब ये रसूलुल्लाह ये चाहते हैं कि खरीद के इज्जत ना लाओ, खरीद के डिग्रियां ना लाओ। रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप खुद इस काबिल बने कि आपका बच्चा बेहतरीन तरीके के साथ लोगों को बच्चा करे। अब इल्म कौन सा हो? इल्म कौन सा हो आपके पास भाई? इल्म कौन सा चाहिए? दीन का भी और, अरे बोले दीन का भी और दीन का भी दुनिया का भी। दोनों इल्म साथ में होंगे तो आपकी नस्ल तरक्की करेगी, दोनों इल्म साथ में होंगे तो आपके बच्चे तरक्की करेंगे। अगर आपके पास आज इल्म नहीं है, कुरान पाक एक इल्म की किताब है, तब हम मुसलमान हुए। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाई, हदीस नबी अलैहि सलाम ने हमें अता फरमाई। अल्लाह के नबी का इल्म है कि कायनात रोशन हो गई है। हमको भी इल्म हासिल करना है, करेंगे इंशाअल्लाह, कर लेंगे इंशाअल्लाह। अब खत्म होती बात ये है कि 2 बहुत जरूरी काम आपको कर सकते हैं, वैसे कर तो आप सकते हो, उम्मीद है कर लेंगे इंशाअल्लाह। आपके नजदीक हो सकता है वो मुश्किल भी हो काम, और हो सकता है बड़े आसान बन जाए। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी सुन्नत कौन सी है? मौलवियों की तनख्वाह क्या है यहाँ पर? इतनी ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं? 5 साल इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? बन जाओगे अरे चलो बाहर ही लगा। कोई भी सरकार हो, जो सरकारें पूरे देश में विदेश में, उनमें ना जो मुलाजिम होते ग्रेड होते हैं, जैसे कि IAS IPS है, फर्स्ट ग्रेड हो गया, PPS है, सेकंड ग्रेड हो गया, ऐसे ग्रेड बनते हैं। उनमें जो 4th ग्रेड का होता है वो भी मेरा ख्याल है 50-60 हज़ार है, 50-60 हज़ार उसकी तनख्वाह आपके पास। अब वो सीधी कहावत है, जितना वोट डालोगे मैं भी। अब दीन जिन्होंने समझाना है, बिना मजाक के कह रहा हूं, जिन्होंने दीन समझाना है वो इस फिक्र में है कि बच्चों की फीस कैसे देनी है, घर कैसे चलाना है। अब अगर आप उनको फिक्र से बेनियाज कर दें, आप उनको फिक्र से बेनियाज कर दें तो वो ये बातें तमाम दीन की निकाल के आपके पास आएंगे
हमारे पास है नहीं, ना हम सीखने की चक्कर में हैं। दो काम कर लीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक में एक आयत है,